बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइफ स्टाइल टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। ताज़ा रहनुमा SM मुनीर ने कनाडा के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के साबिक CEO SM मुनीर ने कनाडा के बिजनेसमैनों को दावत दी है कि वो पाकिस्तान में न सिर्फ सरमायाकारी करें बल्कि दो तरफा तजारत को फ़रोग दें ताकि पाकिस्तान और कनाडा के बिजनेसमैन मज़ीद करीब आ सकें। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम को हराया है वो काबिल तारीफ है। इससे पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियाँ मज़ीद परवान चढ़ेंगी। पाकिस्तान और कनाडा भी खेलों की सरगर्मियों में भी मुश्तरका इवेंट्स के इनेकाद में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार कनाडा की यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरपरस्त आला आमिर शमसी की जानिब से अपने एजाज़ में दिए गए इशाइये के मौके पर खिताब करते हुए किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तेहरान में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक के दूसरे इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दुनिया को चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर इमदाद करे। For sustainable peace and stability in Afghanistan, this reality must be respected and should be reflected in the political structure. It is equally important that the rights of all Afghans are fully respected. Further steps are needed on reopening of schools, both for boys and girls. Women have played a key role in the development of Afghan society. Continued opportunities for them would enhance Afghanistan's social and economic progress. Excellencies, as for international engagement, the visit of special representatives of Pakistan, China and Russia helped convey our perspective to the new authorities in Kabul. अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने महकमे खारजा में अमरीकी सफारतकारी को जदीद बनाने के अपने मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। Diplomacy initiative. We look forward to hearing from you. Thank you all so much, and Julieta, thank you so much for your leadership of this remarkable institution, one that's increasingly vital to the future of our department, the future of our diplomacy. And everyone here today, it's wonderful to see you. It's also wonderful to see so many of our colleagues in person, face to face, or at least mask to mask. To all of you joining us today, please, thank you. Whether in person or via video, welcome. We have with us members of Congress, including, I think, virtually House Foreign Affairs Committee Chairman Meeks, representatives from employee affinity groups at state, friends of American diplomacy, students here at FSI, including some of our newest diplomats, and other members of the State Department community. And it is a pleasure to be here at the Foreign Service Institute, where generations of State Department personnel have trained and studied. Here, many of you have learned new languages, studied the politics, economics, and histories of countries and regions where you serve, received management and leadership training, learned how to write reporting cables, issue visas, run assistance programs, and much, much more. This is where the future of American diplomacy is shaped. And that's why this is a perfect place for today's conversation about the future of the State Department. Throughout its history, the State Department has been in a near constant state of renewal. Through wars and conflicts, depressions and pandemics, democracy movements and tech revolutions, our institution has evolved. Diplomats and development experts building new expertise. पंजाब में अगले 60 दिन के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई है। शेख रशीद का बयान। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि 147 आर्टिकल को कराची की तरह पंजाब पर नाफिज कर रहा हूँ। पंजाब हुकूमत जब चाहे जहाँ चाहे रेंजर्स को इस्तेमाल कर सकती है। खदशा है कालदम करार दी गई तंजीम आलमी दहशतगर्द तंजीमों में ना आ जाए। कालदम तंजीम ने रास्ते खोलने का वादा पूरा नहीं किया। मुजाहिरीन को पुरअमन तरीके से रोकने की कोशिश में 3 जवान शहीद हुए। उन्होंने मजीद कहा कि 8 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। कालदम TLP अस्करियत पसंद बन चुकी है। इनके केसेस फिर हमारे बस में नहीं होंगे। कि गैर मुल्की ताकतें हम पे सैंक्शंस लगाना चाहती हैं, गैर मुल्की ताकतें हमें हमारे न्यूक्लियर पे
नजरें जमाए बैठी हैं, हमारी मईशत पर नजरें जमाए बैठी हैं, और ये उनका छठा एपिसोड है। और मैंने अभी भी जिस वक्त आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मजबूरी की हालत में समझता हूं कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस नत्ती थी, उनके पास लाठियां थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत इस पर तफसीली बात करेगी, लेकिन हालात की संजीदगी को देखते हुए, हालात की गहराई को देखते हुए, ये मेरे फराइज में शामिल है कि मैं कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूं। और ये इनके पास सिर्फ ये 60 दिन के लिए पंजाब की हुकूमत को इख्तियार देने के अलावा सेक्शन 5 और एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997, नेशनल, ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है सेक्शन 5 का, एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूं। समरी मैंने भेज दी है कैबिनेट की मंजूरी के लिए। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में तुर्कमेनिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के दूसरे वजारती इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में तुर्कमेनिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा रशीद मेरदोफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात का अहाता किया, दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान बरादर मुल्क तुर्कमेनिस्तान के साथ बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत और मज़ीद इसमें पायदारी लाना चाहता है। तापी समेत तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद खित्ते में मजबूत इक़्तिसादी तरक्की का बाइस बनेगा। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का बयान। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान की अमेरिकन सदर जो बाइडन के साथ आइंदा माह ग्लासगो में मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी जंगी तैयारे F-35 के इशू पर सदर जो बाइडन से दो टोक बातचीत करेंगे। तुर्की ने F-35 तैयारों की खरीदारी के लिए रकम अदा कर दी है, लेकिन अब अमरीका ये तैयारे देने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की तेहरान में ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन मेहरदीन से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताउन और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सितंबर 2021 में दुशंबे में मुनक्किदा शंघाई ताउन तंजीम में वज़ीर आज़म इमरान खान की शिरकत समेत हालिया आला सतही रवाबित का हवाला देते हुए दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए किए गए फैसलों की भरपूर पैरवी की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने शंघाई ताउन तंजीम की सदारत के दौरान ताजिकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के हसूल के लिए मुसलसल राब्ते की अहमियत पर जोर दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और तजारत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के दूसरे वजारती इजलास के मौके पर उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल अज़ीज़ अकामिलोव से मुलाकात हुई। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान हाला आला सतही रवाबित की वजह से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने तजारत समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर
تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان اس وقت معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ صورتحال کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عالمی برادری کو چاہیے کہ انہیں ہنگامی بنیادوں پر انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ پڑوسی ممالک کے درمیان قریبی رابطہ کاری سے افغانستان میں امن و استحکام کے حصول میں مدد ملے گی۔ بھارتی ریاست تری پورہ میں مسلم مخالف مظاہرے منظم حملوں میں تبدیل ہو گئے، کئی گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ بھارتی ریاست تری پورہ میں ہونے والے مسلم مخالف مظاہرے مسلمانوں کے خلاف منظم حملوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اور کئی دنوں سے مسلسل مسجدوں اور مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں کو نظر آتش کرنے اور انہیں تباہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ شام ہندو انتہا پسند تنظیم وشوا ہندو پریشد کی ریلی کے دوران شمالی تری پورہ کی سب ڈویژن پانی ساگر میں ایک مسجد اور مسلمانوں کی متعدد دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ 2 دکانوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے لائف سٹائل ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔